Hello everyone. So, as we have seen the immunoglobulin structure, we have learned about the different types of immunoglobulin in the biological and chemical characteristics. Along with that, we have also learned the antigenic nature of the immunoglobulin, which we termed as antigenic determinants of antibodies. And here we are going to see the characteristics of domain structure of immunoglobulin. So, talking about the characteristic, this immunoglobulin, they have the different types of the heavy and light chain. We know that, and those chain has some kind of homologous units in them. Homologous in the sense they have some kind of similarities in them, and those units are made up of about 110 amino acid residues, and within each unit, that is what we called as the domain. So domains are nothing but that our immunoglobulin has different units which are homologous to each other, and those units are made up of about 110 amino acids, and they are termed as the domains of the immunoglobulin. So these domains here, now we know that the disulfide bond is present between the two chains, heavy and light chain, to make them a structure of the Y shape, to make them or arrange them in the structure of Y shape. So this disulfide bond also has some role. It forms a loop of about 60 amino acid chain contain one variable domain and one constant domain. Heavy chain domains one variable domain, either of the, now see, we all know heavy chain में like around there are four domains heavy chain में. Some there is one domain which is of वेरिएबल पार्ट जो अप साइड में प्रेजेंट है. जो नीचे के डोमेन्स है दे आर अबाउट ऑफ द कांस्टेंट रीजन, वो कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट है. एंड दिस डोमेन्स दे ऑफ द बोथ चेन, जो हेवी चेन है बिटवीन, वी नो दैट दो दैट रीजन इज कॉल्ड एज हाइंज रीजन, जहाँ पे एक कनेक्शन प्रेजेंट है उनमें, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड विच कनेक्ट्स द हेवी एंड द लाइट चेन टुगेदर. सो ये हेवी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, जो लूप्स में जो आपको सल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है, उसकी वजह से द लूप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. एंड ये लूप जो है इट हैज़ अबाउट 60 अमाइनो एसिड चेन, जिसमें अराउंड एक वेरिएबल डोमेन है, वी कैन से इट एज लाइट चेन का एक वेरिएबल डोमेन है, एक कांस्टेंट डोमेन है. एंड हेवी चेन कंटेन्स, ये लाइट चेन का एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन के दो डोमेन्स प्रेजेंट है. हेवी चेन में अराउंड एक ही वेरिएबल डोमेन प्रेजेंट है, बट 3 जो है कांस्टेंट डोमेन प्रेजेंट है, which may be like 3 in the IgG, IgD, IgE और 4 in the IgM और IgE. constant domain region कौन से होते हैं? CH1, CH2, CH3, CH4. now CH आप मिथिलीन में कंफ्यूज मत हो जाना, इट इज़ C फॉर कांस्टेंट, H फॉर हेवी डोमेन, और वो फोर्थ नंबर पे इसलिए 4, CH4. ओके. सो now an IM or like immunoglobulin heavy or the light polypeptide chain structural unit is composed of approximately 110 amino acid residues. Now this heavy or the light chain of this polypeptide, whatever we called it as a मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें जो हेवी एंड लाइट चेन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 110 अमाइनो एसिड. नाउ immunoglobulin function is always like linked to these kinds of domains. There are many primary, there are much of primary and three-dimensional structure homology between the IgG. like हमें पता है कि ये डोमेन में जो भी वेरिएशन है उसके बेसिस पे हेवी चेन के जो डोमेन्स होते हैं उनमें जो वेरिएबिलिटी है उनके बेसिस पे यू नो दैट कि IgG, IgA, IgM, IgD, IgE इसका क्लासिफिकेशन हुआ है. मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है कि उनके कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन उसमें कौन से डोमेन्स प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे IG का क्लासिफिकेशन हुआ है इनटू डिफरेंट क्लासेस लाइक IgA, IgD, IgM, IgD और IgE. सो नाउ इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, 3D स्ट्रक्चर, एक तो वो
ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन के डिफरेंट टाइप्स हैं ना, GAMD, उनका स्ट्रक्चर इतना भी वैरी नहीं करता एज इन सिंगल यूनिट का, बट और इसके साथ ही इट ऑल्सो रिजेंबल्स समहाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द MHC मॉलिक्यूल। अगर हम आगे जाके MHC मॉलिक्यूल स्टडी करने वाले हैं, आपको इसका और उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर दिखेगा। सो ये इट इज़ अ होमोलॉगस टू द ईच अदर एज वेल एज इट इज़ होमोलॉगस टू द MHC मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है डोमेन्स में। इन सिंपल लैंग्वेज डोमेन्स क्या होते हैं, दे आर द होमोलॉगस यूनिट्स जो प्रेजेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन में। उनमें अराउंड 110 अमाइनो एसिड के कुछ यूनिट्स है जो होमोलॉगस है, उनको हम डोमेन्स बोलते हैं। और वो डोमेन्स कौन से होते हैं, फिर हेवी चेन में वी नो दैट अबाउट 4 डोमेन्स आर देयर। वन इज वेरिएबल डोमेन, 4 आर द कांस्टेंट डोमेन। लाइट चेन में देयर आर ओनली 2 डोमेन्स, हेवी वेरिएबल डोमेन एंड द कांस्टेंट डोमेन। और उनका लिंक्ड होने की वजह से यू कैन सी द डायग्राम, वहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। और ये स्ट्रक्चर की लाइक हेवी चेन के डोमेन के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू डिफरेंट टाइप्स लाइक IgA, IgG, IgD, IgM, IgE। अलॉन्ग विद दैट ये इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, सिमिलर है, and also they are having the structure which is quite similar to the 3D structure of MHC molecule. Now हेवी चेन जीन ऑर्गेनाइजेशन, हेवी चेन की जीन्स कैसे अरेंज किए हैं, लाइक हेवी चेन जीन फैमिली इज सिचुएटेड नाउ। माउस में अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12 एंड ह्यूमंस में इट इज़ ऑन द क्रोमोसोम नंबर 14 एंड इट इज़ लाइक माउस की बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 300 to 400 VH जीन सेगमेंट्स लोकेटेड अपस्ट्रीम फ्रॉम इट। तो ये जो हेवी चेन के सेगमेंट्स है उसके ऊपर जो है VH जीन के सेगमेंट्स प्रेजेंट है। VH जीन के जो सेगमेंट है सॉरी दे आर प्रेजेंट एट द अपस्ट्रीम रीजन ऑफ दिस जीन। और जो दूसरे सेगमेंट्स है डाउन टू दी VH रीजन there are 4 JH gene segments and which are followed by the CH that is constant heavy chain के जो constant part है उसके जीन सेगमेंट। मतलब क्या, एक जीन है सपोज, तो उसके पहले उसके फर्स्ट हाफ में क्या होगा, देयर विल बी VH रीजन। VH रीजन में अराउंड 300 to 10,000 लाइक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है इस जीन का। देन उसके नीचे होगा JH सीक्वेंस जिसके अराउंड 4 यूनिट्स है। देन उसके नीचे होगा CH सीरीज विच इज़ ऑफ मैनी जीन्स, उसका नंबर नहीं दिया है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द माउस, माउस का हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द ह्यूमन क्या होता है, ईच CH सेगमेंट एनकोड्स द कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन in the heavy chain isotype. So now heavy chain के लिए in the heavy chain constant region के लिए we have the CH gene and then the CH gene segments are organized into a series of the coding exons and the non-coding introns. So ये जो CH sequence है उनमें वी नो दैट जीन में एक्सॉन रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन रीजन होते हैं। एक्सॉन्स आर ऑलवेज द कोडिंग एंड इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग जीन सीक्वेंस। इंट्रॉन्स मैक्सिमम टाइम स्प्लाइसिंग में कट हो जाते हैं या फिर एलिमिनेट हो जाते हैं। सो द ईच एक्सॉन, अगर एक्सॉन की बात करें जो एक्चुअली कोडिंग सीक्वेंस है, इट एनकोड्स द सेपरेट डोमेन ऑफ द हेवी चेन कॉन्स्टेंट रीजन। सो दिस एक्सॉन हैज़ द एबिलिटी that it separates the domain of the heavy chain and the we know कि constant and heavy chain में जो है domains constant region के and variable region के they are joint। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये constant region का domain है, ये जो है heavy chain के variable region का domain है। so it is going to be separated by the exon. okay, so now a similar heavy chain domain जीन ऑर्गेनाइज्ड इज़ फाउंड इन द ह्यूमंस विद द एस्टिमेट। नाउ यहाँ पे ह्यूमंस में अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट अ लेस एज कम्पेयर टू यू लाइक माउस। तो उनमें 100 VH जीन सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द VH sequence, 30 segments of the VH region and the 6 functional GH segments followed by the CH segment। मतलब ह्यूमन में भी माइस की जैसे ही अरेंजमेंट है, पर नंबर थोड़ा वेरी करता है। लाइक पहले VH ही होंगे, बाद में जो है वो CH होंगे एंड सॉरी नॉट CH, JH होंगे। अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी CH एट द एंड।
100 होंगे, देन 30 होंगे एंड CH सेगमेंट्स होंगे. सो देन दिस माउस और इन द ह्यूमन द CH सेगमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर लाइक. अभी ये जो रीजन है ना लाइक हेवी चेन है ना, उसमें अराउंड 5 डोमेन्स रहते हैं लाइक म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा, देन देर इज गैम्डा, देन देर इज म्यू, एप्सिलॉन. ओके, सो देर आर 5 लाइक डोमेन्स. उसके बेसिस पे वहाँ पे जीन भी अरेंज किए हैं, ह्यूमंस में भी माइस में भी. अभी ये जीन में से कौन सा एक्सप्रेस होता है, कौन सा रीअरेंजमेंट उसकी होती है कुछ तो भी, ये कब होता है जब बी सेल का डिफ्रेंशिएशन होना होता है, तब ये जीन्स का रीअरेंजमेंट होता है. उस प्रोसेस को वी कॉल्ड इट एज द क्लास स्विचिंग. और उसके बेसिस पे क्लास फॉर्म होता है लाइक IgA एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे, या तो IgM एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे, IgD एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे, या तो IgE एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे. ये किस बेसिस पे होता है? बाय द जीन सीक्वेंस. जो हेवी चेन के जो जीन हैं उसके जो जीन्स है लाइक उसमें जो डोमेन्स है उसके बेसिस पे कि कौन सा डोमेन का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कि IG एप्सिलॉन का हो रहा है या IG म्यू का हो रहा है, उसकी बेसिस पे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ द हेवी चेन डोमेन. एज आई टोल्ड यू, इनका फंक्शन मेजरली क्या है कि ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई है वो कौन सी टाइप की है. अगर एक्सप्रेस हुआ म्यूजिन तो IgM फॉर्म होगी, गैमा एक्सप्रेस हुआ तो IgG फॉर्म होंगी, IgA फॉर्म होगा अगर अल्फ़ा एक्सप्रेस हुआ तो, IgD फॉर्म होगा अगर डेल्टा एक्सप्रेस हुआ तो, एंड IgE फॉर्म होगा अगर एप्सिलॉन एक्सप्रेस हुआ तो ऑफ हेवी चेन. दीज आर द डोमेन्स ऑफ द हेवी चेन. उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट या उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म होने वाली है. अब ये भी डिपेंड करता है ऑन द एंटीजन एज वेल. ओके, सो नाउ these heavy chains are structurally and antigenically distinct for each class of immunoglobulin. और actually they are very much. अब मैंने आपको सिखाया था कि कुछ मोनोमर्स होते हैं, कुछ डाइमर्स होते हैं, कुछ पेंटामर्स होते हैं. तो ये स्ट्रक्चरली एज वेल एज उनका फंक्शन भी डिफर करता है कि उनको किस एंटीजन पे जाके बाइंड होना है. तो इसके बेसिस पे भी उनका लाइक वो डिफरेंट है एक दूसरे से. They differentiate in their size as well as their carbohydrate content as in antigen. So now the function of the light chain domain. Light chain में क्या है, जैसे यहाँ पे 3-4 डोमेन है, लाइट चेन में बस 2 डोमेन है, देयर इज़ लैम्डा और देयर इज़ कप्पा. और बहुत शॉर्ट में लाइट चेन का, क्योंकि लाइट चेन का इधर लैम्डा एक्सप्रेस होगा या तो फिर कप्पा होगा, वेरिएबल रीजन उनका एक्सप्रेस होता है. So this light chain has the 2 successive domains are constant domain, one constant domain and one variable domain. We know that कि light chain में बस 2 domains present रहते हैं. आपने देखा होगा डायग्राम, तो बस 2 बॉक्स आपको दिखेगी वहाँ पे. So now this antibody contains the 2 light chain that are always identical. Only one type of the light chain, kappa or the lambda is that per antibody in the mammals. So now इधर उनमें से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा और पर एंटीबॉडी इट डिपेंड्स कि कप्पा एक्सप्रेस होगा या फिर जो है डेल्टा एक्सप्रेस होगा, सॉरी लैम्डा एक्सप्रेस होगा. इट डिपेंड्स ऑन द एंटीजन. देन इसके अलावा एक और टाइप का डोमेन है विच इज़ आयोटा, जो लाइट चेन का डोमेन है, बट ये हम में नहीं प्रेजेंट रहता. इट इज़ प्रेजेंट इन द शार्क्स एंड बोनी फिशेज, दैट इज फिशेज में प्रेजेंट रहता है. Then the gene segments of the variable domains. The Ig molecule is built from the 2 heavy chain and the 2 light chain. तो इन शॉर्ट ये समरी है कि हमें पता है कि Ig जो है उसमें 2 हेवी चेन रहते, 2 लाइट चेन रहते. लाइट चेन में देर आर 4 डोमेन्स, सॉरी 2 डोमेन्स, एंड हेवी चेन में देर आर अबाउट 5 डोमेन्स. तो हेवी चेन में इधर देर विल बी अल्फा, there will be beta, there will be not beta, sorry, there will be lambda, there will be delta, there will be epsilon, there will be mu. ये कोई भी डोमेन हो सकता है. या तो फिर उसमें भी नो अकॉर्डिंग टू द हेवी लाइट कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, उसमें 4 डोमेन्स रहते. एक तो उसमें 3 जो है कांस्टेंट डोमेन रहते लाइक CH1, CH2, CH3 एंड 1 इज़ द वेरिएबल डोमेन. और लाइट चेन में आपको पता है बस 2 डोमेन से दे आर these 2, they are only the like light chain का VL और the CL, मतलब constant डोमेन एक होगा और एक वेरिएबल डोमेन होगा, only one. So this is about the domain structure of the
of the immunoglobulins. Along with that we have also seen the structure and the function of the heavy chains कि heavy chains में कौन से domains present रहते हैं and वो क्या function करते हैं. In the next lecture we are going to see very hard part of this chapter and last point, which is molecular basis of the antigenic diversity. I hope you have understood this point. I will forward you the notes and you will better understand after reading. So good luck. Bye.